منڈی، حوالہ اور دیگر غیر قانونی ذرائع سے رقوم کی منتقلی کے قانون میں ترمیم کا جائزہ۔ وزیر خزانہ اسد عمر کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، سفارشات وزیر اعظم کو بھجوانے کا فیصلہ۔ حکومت کا احتساب کا نیا ادارہ بنانے کے لیے قانون سازی پر غور، حتمی مسودے کی تیاری سے قبل تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کرپٹ مافیا کے خلاف کارروائی کے لیے سب کا احتساب ناگزیر ہے۔ بینک اکاؤنٹ ہے یا الادین کا چراغ، جھنگ کا نوجوان بھی راتوں رات کروڑ پتی بن گیا۔ کراچی کے بعد ایک اور اکاؤنٹ سے بھاری رقم منتقلی کا کیس سامنے آ گیا۔ جی آئی ٹی نے نوجوان شہری اسد علی کو کل طلب کر لیا۔ اسد کے بھائی کا کہنا ہے کہ والد کے پینشن سے گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ ہمارا سورس آف انکم جو ہے وہ والد صاحب کی پینشن ہے۔ ہمارے والد صاحب 2005 میں انتقال کر گئے تھے، ان کی پینشن آتی ہے اور کچھ ہماری سسٹرز گھر پر ہوم ٹیوشنز پڑھاتی تھی، جس کے ساتھ ہمارے گھر کے اخراجات وغیرہ چلتے تھے۔ کراچی میں فالودہ فروش کے ارب پتی بننے کا اسکینڈل، بمبارڈ نامی شخص اور اس کا ساتھی یہ اکاؤنٹ آپریٹ کرتے تھے۔ بینک اکاؤنٹ سے دبئی میں اہم شخصیت کو کروڑوں روپے منتقل ہوئے۔ ایف آئی اے نے رقم ٹرانسفر کرنے والے شخص کا کھوج لگا لیا۔ جعلی اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشنز کا معاملہ، سپریم کورٹ کے حکم پر جی آئی ٹی تحقیقات میں مصروف۔ منی لانڈرنگ سے متعلق کمپنیوں کا ریکارڈ نیب سے طلب، زرداری اور اومنی گروپ سمیت 34 کمپنیاں شامل۔ نیب کے 3 افسران کی خدمات بھی حاصل کر لی گئیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس طلب، بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی سمری سمیت 4 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ آئی نیوز نے اجلاس کا ایجنڈا حاصل کر لیا۔ حکومت نے 24 لاکھ کی بھینسیں بیچی اور 35 لاکھ کے اشتہار دیے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو، بولے پاکستان دیوالیہ ہونے نہیں جا رہا، بس مالیاتی خسارے کا مسئلہ ہے۔ سعودی وفد سے مذاکرات کا پہلا دور ختم، پاکستان کی 3 ماہ تک یومیہ 2 لاکھ بیرل تیل ادھار دینے کی درخواست، سرمایہ کاری کی بھی دعوت۔ وزیر اعظم عمران خان کو جرمن چانسلر اینگلا مرکل کا ٹیلی فون، وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ جرمنی کے دورے کی دعوت وزیر اعظم نے قبول کر لی۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، جیو اسٹریٹجک اور سیکیورٹی صورتحال پر غور، پاک فوج کا قیام امن کے لیے انسداد دہشت گردی آپریشنز جاری رکھنے کا فیصلہ۔ لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار بطور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے سربراہ کے عہدے سے ریٹائر ہو گئے۔ نئے چیف کی تعیناتی کا فیصلہ جلد متوقع۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم ذکی، عاصم منیر، وسیم اشرف، عبدالعزیز اور محمد عدنان کے نام زیر غور۔ شاباش کراچی پولیس، قائد آباد سے اغوا ہونے والا شہری نادر چند گھنٹوں میں ہی بازیاب، 2 اغوا کار گرفتار، اغوا کاروں نے رہائی کے لیے تاوان کا مطالبہ کیا تھا، ایس پی ملیر کا بیان۔ کراچی کے علاقے کورنگی سے چوری شدہ 431 موٹر سائیکلیں برآمد، پولیس اصل مالکان کا پتہ لگانے میں مصروف۔ بلڈ بیگز اور یہ ڈرپس یہ دینا الاؤ ہے؟ نہیں الاؤ نہیں ہے۔
कराची में प्लास्टिक या कत्ल का आलाकार, अस्पतालों का खतरनाक प्लास्टिक, फैक्ट्रियों को बेचे जाने का इंकशाफ। प्लास्टिक पिघलाकर घरेलू इस्तेमाल की अशिया बनाई जाती हैं। आज न्यूज़ के प्रोग्राम टारगेट ने पर्दाफाश कर दिया। सनसनीखेज इंकशाफ ने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया। बनी गाला तजावुजात के सुप्रीम कोर्ट का वजीर आजम इमरान खान को जुर्माना अदा करने का हुक्म। इमरान खान सबसे पहले अपना घर रेगुलाइज कराएं, फिर दूसरों को भी कराएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, हुकूमत को जुमे तक की मोहलत मिल गई। इसाकदार की जायदाद कुर्क होगी या नहीं, एहतिसाब अदालत ने जायदाद कुर्की से मुतालिक नैब की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। आज सुनाया जाएगा। मुल्क भर में 6000 गैर कानूनी सोसाइटीज का इंकशाफ। इस्लामाबाद में 12, पंजाब में 4680, सिंध में 967, खैबर पख्तूनख्वा में 120 और बलूचिस्तान में 221 हाउसिंग सोसाइटियां गैर रजिस्टर्ड हैं। FI की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। लैंड माफिया नहीं बचेगी, पंजाब हुकूमत का बड़े ऑपरेशन का फैसला। अराजी खाली ना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। LDA की जानिब से काबिजीन को नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ हमारे पीछे पीछे चलती है। आज वजीर आला ने भी कब्जा माफिया के खिलाफ बयान दे दिया। चीफ जस्टिस के जमीनों पर कब्जे से मुतालिक केस में रिमार्क्स। MNA करामत खोकर और नदीम अब्बास की माफी कबूल। अदालत का मंशा और 4 बच्चों के नाम ECL में शामिल करने का हुक्म। ने जो दरखास्त की तो ये फैसला किया है कि उनकी वर्दी दोबारा जो पुरानी तारीखी है वो दोबारा रेड शर्ट और रेड पगड़ी में तब्दील कर दी गई है। रेलवे की साख तो बहाल ना हुई, अलबत्ता तब्दीली जरूर आ गई। वज़ीर रेलवे का कुलियों की पुरानी सुर्ख वर्दी बहाल करने का हुक्म। शेख रशीद ने भारत को शिकस्त देने का नुस्खा भी बता दिया। कहते हैं अगर भारत को हकीकत में शिकस्त देनी है तो रेलवे को मजबूत करना होगा। जाली हलफनामे जमा कराने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन का अलीम खान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म अयाज सादिक की दरखास्त पर दिया गया। इलेक्शन कमीशन का पंजाब असेंबली के हल्का PP 217 में दोबारा इंतखाब का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त देने वाला आजाद उम्मीदवार मोहम्मद सलमान नाअहल करार। LPG की कीमत में 5.5 रुपए फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 65 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 252 रुपए महंगा। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कुत्तों की एंट्री। इंतजामिया की सख्त सिक्योरिटी का पोल खुल गया। मुसाफिरों में खौफ हरास। गफलत बरतने पर एयरपोर्ट मैनेजर असगर फहीम ओहदे से फारिग। बरतानवी वजीर आजम टेरेसा मे का 10 बड़े शहरों में ट्रांसपोर्ट निजाम में बेहतरी लाने का फैसला। 1 अरब 70 करोड़ पाउंड खर्च किए जाएंगे। ग्रेटर मैनचेस्टर, डर्बी, नॉटिंघम, लेस्टर सिटी, नॉर्थ ईस्ट, नॉरिच फील्ड और दीगर शहरों में ये रकम मुख्तस की जाएंगी। मेयर लंदन सादिक खान ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए 6 मिलियन पाउंड के फंड्स का ऐलान कर दिया। मुकामी काउंसिल्स ये फंड्स गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए ममनुआ करार दी जाने वाली सड़कों पर लगाएंगी। लॉर्ड नज़ीर अहमद दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। पाकिस्तान में क़याम के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान, सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मिशाल मलिक समेत अहम सियासी और रूहानी शख्सियात से भी मुलाकात की।
गिरफ्तार कर लिया। कराची में कायदाबाद पुलिस ने तेज तरीन कार्रवाई की और ये साबित कर दिया कि वो अगवा के मामले पर कितनी मुतहर्रिक है। कायदाबाद से सुबह 11 बजे के करीब नादिर नामी शख्स को अगवा किया गया था और अहले खाना ने शाम 4 बजे पुलिस से राब्ता किया, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ नादिर को बाजियाब कराया बल्कि 2 अगवाकारों को भी गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस ने चोरी शुदा 431 मोटरसाइकिल बरामद कर ली हैं। ये बाइक शहर के मुख्तलिफ इलाकों से छीनी गई थी। SSP कोरंगी के मुताबिक अब तक 30 बाइक्स को मालिकान के हवाले कर दिया गया है, जबकि दीगर मालिकान की तफसीलात जमा की जा रही हैं। जी हाँ, कराची से अहम खबर है जहां पर एक बड़ी तादाद में इन मोटरसाइकिल्स को बाजियाब करवाया गया। चोरी शुदा 431 मोटरसाइकिल्स हैं जिनको बरामद कर लिया गया। ये बाइक्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों से छीनी गई थी। SSP कोरंगी के मुताबिक अब तक उन अफराद की तलाश की जा रही है जिनकी ये बाइक्स हैं। कराची में IA चुंदरीगढ़ रोड पर वाक़ई इमारत में लगने वाली आग पर 7 घंटे बाद काबू पा लिया गया। आग बेसमेंट में लगी थी और डक के जरिए फैली थी। 9 फायर टेंडर, एक स्नैरकल और एक रेस्क्यू की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। कराची का इलाका II चंद्रीगढ़ रोड, यहाँ पर वाक़ई इमारत एक बार फिर आग की नजर। आग इमारत के बेसमेंट में लगी जो डक के जरिए तीसरी मंजिल तक जा पहुंची। एंटर होने के बाद हमने पूरी बिल्डिंग को सर्च किया तो आखिर के अंदर ये पता चला कि बिल्डिंग की बैक साइड पर जो केबल्स जा रहे हैं उनकी इंसुलेशन जल रही है, जिसकी वजह से धुआं बेताशा फैल गया। 5 गाड़ियां जल गईं, दीगर नुकसान अलग हुआ। कंप्यूटर, एसेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें भी थीं। कितना नुकसान हुआ तखमीना नहीं लगाया जा सकता। मसला ये है कि इनके पास आ तो गए वो, लेकिन इक्विपमेंट नहीं थे। इक्विपमेंट का मतलब ये मास्क नहीं थे। मास्क जितने भी बिजनेस कम्युनिटी है उनके सारे के ऑफिस हैं जिसके इक्विपमेंट लगे हुए हैं, लेकिन बेसमेंट के अंदर में इन्होंने अपना एक सिस्टम लगाया हुआ था जो कि ये सारी चीज़ों को मेंटेन करता था, वो जल गया है। इस इमारत में आग पहले भी लग चुकी है, बार बार क्यों लग रही है? वज़ीर बल्दियात तहकीकात कराएंगे। इसी बिल्डिंग में पहले भी कई मरतबा आग लग चुकी है और इस बात की तहकीकात हम ज़रूर करवाएंगे कि अगर पहली आग लगी, दूसरी आग लगी, उसके बाद जो सिविल डिफेंस के महकमे की जिम्मेदारी थी उन्होंने कितनी पूरी की। आग सुबह के वक्त लगी थी। इत्तला मिलने पर मेयर कराची वसीम अख्तर और कमिश्नर कराची सालेह फारूकी भी पहुंचे। अपनी निगरानी में आग बुझाने के इंतजामात कराए। फायर ब्रिगेड ने 7 घंटे बाद आग पर काबू पाया। कराची में पुलिस मुकाबले के दौरान कत्ल होने वाली अमल के जिम्मेदार मुलजिम को जेल भेज दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस से 5 अक्टूबर तक मुकदमे का चालान मांग लिया। नन्ही अमल तो चली गई, इसकी मौत का जिम्मेदार नहीं बचेगा। अमल कत्ल केस के मुलजिम को जेल भेज दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुलजिम खालिद को पेश किया गया, जहां तफ्तीशी अफसर ने बताया मुलजिम खालिद रिक्शे में डकैतियां करता था। मुलजिम को मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया, जबकि साथ ही मौके पर मारा गया। मुलजिमान और पुलिस के दरमियान फायरिंग में बच्ची जाँ बहक हुई। 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी अमल के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। एहलकारों ने हिफाजती जमानत ले रखी है। अदालत ने मुलजिम खालिद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजते हुए 5 अक्टूबर तक मुकदमे का चालान पेश करने का हुक्म दे दिया। और कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पुलिस एहलकार पर तशद्दुद करने वाले दोनों मुलजिमान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिमान ने दरख्शां थाने की हुदूद में पुलिस एहलकार पर तशद्दुद किया था। मेरे को 4 बंदों ने मारा, राड थे लोहे के, ये सब तमाम देख रही थी। मेरा कसूर भी कोई नहीं, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। नहीं छोड़ेंगे नहीं, मैं खुद कंप्लेनर हूँ यार। अल्लाह का शुक्र, खैरत है मेरे अंदर। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद के मुलजिमान गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 4 अक्टूबर तक रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक दरख्शां थाने की हुदूद में दोनों मुलजिमान ने पुलिस एहलकार को रास्ते में रोका और लोहे की राड से तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस एहलकार पर तशद्दुद की फुटेज भी आज न्यूज़ को मौसूल हो गई।
पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं, जबकि मजीद 2 साथियों की तलाश जारी है। अदालत ने पुलिस से प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। उधर स्वाबी में नामालूम अफराद की फायरिंग से पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जिला सदर जा बहक हो गए। स्वाबी पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने पख्तूनख्वा मैप के जिला सदर फारूक खान को ज़ैदा सिटी के घर के सामने फायरिंग करके कत्ल किया, जबकि मुल्जिमान वारदात के बाद फरार हो गए। मकतूल की नाश को पोस्टमार्टम के लिए बाचा खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वाशिंगटन पहुंच गए हैं। वो आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर ख़ारजा अमरीकी कांग्रेस के मुख्तलिफ अरकान से भी मुलाकातें करेंगे। शाह महमूद कुरैशी अमरीकी इदारा बराए अमन में भी खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रवा हफ्ते बलूचिस्तान के दौरे का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म कोयटा में आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान में वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के मंसूबों के बारे में मुशावरत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रवा हफ्ते बलूचिस्तान के दौरे का फैसला कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म कोयटा में आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान में वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के मंसूबों के बारे में मुशावरत भी करेंगे। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास का एजेंडा आज न्यूज़ ने हासिल कर लिया है, जिसके मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफे की समरी समेत 4 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास की सदारत वज़ीर ख़जाना असद उमर करेंगे। गुज़िश्ता इजलास में बिजली की कीमतों में इजाफे की समरी मौखिर कर दी गई थी। वज़ारत तवानाई ने बिजली की कीमत में इजाफे की नई समरी मंजूर के लिए भिजवाई है। इजलास में LNG टर्मिनल पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। शिंगाई इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की तरफ से के इलेक्ट्रिक के शेयर का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा, जबकि साल 2018 और 19 के लिए तंबाकू के टैक्स पर भी नजर सानी की जाएगी। और अब बात करते हैं एक और नए करोड़पति की, जिसे अपने करोड़पति होने का इल्म FIA के नोटिस से हुआ। जंग के असद अली के नाम पर 17 करोड़ 30 लाख की ट्रांजैक्शन हुई, लेकिन उसको खबर तक ना हुई पैसा कहां से आया और कहां चला गया। असद अली को कुछ पता न चला। अनजान करोड़पति नौकरी की तलाश में मारा मारा भटकता रहा, लोगों से उधार ले लेकर जिंदगी बसर करता रहा। जरा गौर से देखिए इस नौजवान चेहरे को, जिसके अकाउंट में करोड़ों का लेन देन हुआ। मासूम दिखने वाला ये नौजवान असद अली झंग का रिहायशी है। इसको पता भी नहीं था कि इसके अकाउंट में ये पैसा कहां से आया और कहां चला गया। FIA के नोटिस ने असद अली को हिलाकर रख दिया। वालिद की पेंशन पर गुजारा करने वाले इस नौजवान के अकाउंट से 17 करोड़ 30 लाख रुपए निकाले गए। परेशान असद अली नोटिस मिलते ही कराची के लिए निकल पड़ा। JIT ने असद अली को तमाम अहम कागजात के साथ तलब कर रखा है, जहां वो पेश होकर अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करेगा। कराची के फालूदे वाले के अकाउंट में अरबों रुपए की मुंतकली के मामले पर अहम पेशरफ सामने आ गई है। FIA ने अकाउंट में रकम ट्रांसफर करने वाले शख्स का खोज लगा लिया है। ये शख्स कौन है, जानते हैं रिपोर्ट में। कराची का गरीब फालूदे वाला, उसके नाम पर अकाउंट किसने खोला? उस अकाउंट में अरबों रुपया कहां से आया, किसने डलवाया? आज न्यूज ने खोज लगाया तो एक नाम सामने आया, बम्बाट। कौन है ये बम्बाट? जराए के मुताबिक बम्बाट जमीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट में मुलव्विस है और अपने एक साथी की मदद से वो ये अकाउंट ऑपरेट कर रहा था। कब्जा माफिया ने इस अकाउंट में 118 मिलियन रुपए जमा कराए। ये रकम 11 माह के दौरान जमा कराई गई। अकाउंट में एक सरकारी अफसर की जानिब से भी रकम जमा कराने का इंकिशाफ हुआ है, जबकि इसी अकाउंट से दुबई में अहम शख्सियत को भी करोड़ों रुपए मुंतकिल हुए। FIA ने तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए और मामले की मजीद तफ्तीश जारी है।
وزیر خزانہ اسد عمر کی صدارت میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ہنڈی، حوالہ اور دیگر غیر قانونی ذرائع سے رقوم کی منتقلی کے قانون میں ترمیم